Hey guys, good evening. I hope I'm pretty much audible as well as visible. Great. Good evening, guys. I hope people have started joining in. Right. As updated earlier, so we are supposed to go live from 9 p.m. today. So we'll be talking about our live streaming. So the questions which we were solving on Leetcode, right? So we'll be doing that. Great. Guys, again, as always, I'm monitoring my chat. So if anybody has any concerns, right, for anything, so do let me know so we can take up your questions here, right? We can take up that. Hey, Skew Knight, thank you so much. Good evening. I'm good. I hope you're doing well. Right. So again, the agenda of today's session is, guys, the same thing. So we'll be solving the Leetcode problems, right? So we'll be going with the set of questions, the sequence we were following for the Leetcode problems, right? We'll be taking each of these questions one by one, and then we'll try to solve it live. Right. Great. But before anything, let's start with a quick round of introduction. As always, you know, my name is Arpit Jain, and I'm a senior data scientist myself. I have almost 9 years of industry experience into multiple domains, be it manufacturing, banking, automobile, telecommunications. So I've been into multiple domains. Along with that, I'm also a motivational speaker. So I do take up industry sessions. I talk to students regarding their career, jobs, right? Definitely. So any questions regarding your job, anything, so just do let me know, guys. We can obviously take up the questions, right? So as part of our subjects, we'll be talking about Python, SQL, and data science, right? Those are the three things which we will be talking about. So Python, we have already been doing this. We are into the problem solving of Python. We are doing the problems for competitive programming from Leetcode. That's what we are doing. SQL, again, we are doing the same thing. So SQL, we are solving the questions, again, the premium questions from Leetcode only. So that's what we are doing. Data science, we finished 3 topics till date, in fact 2 only. So other is the extension of the second topic. So basically we finished visualization using Seaborn. We finished NLP using NLTK, and also we did NLP using Spacey, right? So we did finish these topics. But again, today's agenda is towards Python advanced coding. So we'll be doing the Leetcode problems, right? Great. Okay, that's good. That's good, Skew Knight. So you said you were excited. That's really exciting to me also. We'll do as many good problems as we can today as well, right? Great. Okay, so before proceeding further, time for a quick promotion, guys. As always, please bear with me for this. This is mandatory. So you know you have a code right in front of your screen, which is Python 10. So if you're going to use this code Python 10, you know you're going to get a free bonus Relevel sample test paper, right? So now what exactly the Relevel platform is. Many a times the candidates do miss out on the great opportunities due to multiple reasons. It could be because they don't have better degree, or might be they are having the poor networking, right? So by better degree, I mean not having degree from the tier A universities, or also having don't know the right sort of people to ask for the referrals, right? Also, the resumes through which the candidates are applying are not really standing out from the 100 other applicants. That could be the reason, like some keywords are missing, or something which is totally beyond your control, right? And also you're applying to n number of jobs, basically you're not getting even a single call for your interview, right? So very practical problem. Everybody faces this. But again, that's how things are, right? And for this reason only, Relevel has been introduced, which is India's first test hiring platform by Unacademy, helping you to get your dream job. So how does it work? So here you're purely dependent on your skills and talent, nothing on any sort of degree or people networking. So it's more like an assessment platform, right? So if you're skilled enough, you should be getting the right score in the assessments, and that's the only expectation here. So you have to get the best score out of this assessment, and that's it. So that's the only expectation you have. So if you're knowledgeable enough, you should be getting the score, and based on this score, the companies will be reaching out to you. So that's how simple it is, right? Certain other benefits is if you participate in the Relevel platform. At least 50 plus companies, including the top startups and the unicorns, they hire directly from the Relevel platform. Those include ENY, Upgrad, Cred, Razorpay, Urban Company, and many more. At least 1,000 plus open job positions right now across 3 different portfolios, including the business development, front end, and the back end development.
Multiple sub roles also available within these. This is completely online, so you can take this from the comfort of your home. So you're not supposed to be physically present anywhere to be part of this test. And the best part is this is completely free, guys. So you're not paying even a single penny to be part of this test. So you can take this for free of cost. And the only expectation here is you have to finish the entire test in a single day. Okay, so there will be multiple rounds in it. The only expectation is like you finish the entire test in a single day's time, and that day could be of your choice, obviously, right? And then the Relevel score will be revealed in a week's time. Cool. And it's an assessment anyway, so there is a qualifying score as well. You're expected to get at least 70% of marks to make your Relevel profile. But in any unfortunate situation, if you're unable to get that 70% marks, you can always reattempt the test, but that can happen only after 30 days of your first attempt, right? On the contrary, again, if you're one of the top scorers, you can always be expected of getting some rewards such as MacBook, iPhone, and all that. That is again there. So with this Relevel, you are in a unique position to invite interest from the companies instead of you hunting for your own opportunities, right? It's more like once you have given the test, just sit back and relax. The companies will start reaching out to you post your scores are revealed. So registration is also quite easy, guys. The link is there in the YouTube description, so go through that link, right? And then there are certain tests, so business development, front end and the back end development, as I've told you, multiple sub roles like the sales associate, customer engagement associate in business development. Front end you have Angular developer, web developer, back end you have backend engineer, data engineer, and all that. So multiple tests depending on your skills and the area of interest. You can choose the test of your choice. The next would be booking the slots, so the test date, right? So date again. You can choose based on your availability, so you can choose that date. And the next would be to fill up your demographics like the full name, email ID, birth year, state, and the gender. At last, you have an option of a promo code. You can use the code Python 10. So if you're going to use the code Python 10, you're going to get a free bonus sample test paper, right? So do not forget to use the code Python 10 here. So if you use a code, that's how the dashboard should look like. You have an option of a practice tab. Where you can see the sample paper. You can download the sample paper and just be ready with your the actual test. This will be containing the replica sets of questions which you can expect in the real examination, right? So I would say a very good place to practice for the real assessment. So please do not forget to do that. So guys, with this, I would request you to at least register for the platform today. It's anyway free of cost, right? So you're not paying a single penny. So if you are actively looking for a job and you're trying your luck, definitely this also deserves one chance. So try it for once. If you feel that you're not getting benefited, you can always take your decisions later. Anyway, nobody's asking you to pay any money here, right? So just try it for once. What's the problem in that? We have an official Telegram channel as well, so do join this channel. So this will be one place stop for all of your queries, schedules, and all that. So do join this channel as well. So with this, I would request you to please like and share the video. That's the least I can expect, right? So if you feel that you're getting benefited, so do like and share the video, guys. Cool. So with this, we are into the Python programming for the Leetcode. So we'll be solving the problems. Right. Okay. So Skew as United is saying we have scheduled the test on 21st, and that's really great. Really great. Thank you so much for that. And yeah, I mean, at least you can try it for once, for sure. And I'm pretty sure if you're able to solve the questions we're doing in the live class, right? So definitely you should be able to help yourself. टेलीग्राम चैट यार यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है ना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको मिल जाएगा. आई कुड सी दैट, है ना. सो टेलीग्राम का एक लिंक है वहाँ पे, आप डिस्क्रिप्शन में देखो, मिल जाएगा आपको. चलो, लेट मी पुल अप द Leetcode website. Let me do that. Yeah, let me know if my screen is visible. Yeah, okay, cool, great. So I hope my screen should be visible, the Leetcode. Right, so कहाँ पर है हम यार? Okay, so we solved this question from yesterday in the sequence, the three-sum closest, right? So where yeah, so again here also we define the same logic, right? So mostly towards the left pointer, the right pointer, and then we were incrementing it one by one and then checking for the conditions for my sum which is being closer to my target, right? Simple problem only, but again we just defined the logic and then we solved it. Cool. Okay, so let's start with the next question, right? So I hope people are fine with that. So let's start with this next question. It says letter combinations of a phone number
Okay, interesting question. Let's see. Cool. So as always, we're gonna have the same set of things which we have always been doing. So we'll be having the input, then we'll be having the output, okay, and then we'll be having the constraint, and then we'll be having the flow, right? So basically flow, again, it's important because we have, before even jumping to the code, we are first defining the logic, right? The logic is very important, guys, to solve the problem. This is where we'll be talking about how we can think of a problem, like what strategy we should be following, how the thing should be, right? So cool. So that's what we'll be defining the flow. So let's look at the question. So given a string containing digits from 2 to 9 inclusive, so given a string containing digits from 2 to 9 inclusive, okay, return all possible letter combinations that the number could represent. Okay, so we have okay, so input क्या है basically मेरा string containing digits है ना. So 2 to 9 में मेरे पास digits होंगे string input. Okay, so return all possible letter combination that the number could represent. So output में क्या चाहिए? All possible letter combinations. So letter combinations कैसे बना रहा है ये? Let's look at this question. So return the answer in any order. So constraint is no order constraint. A mapping of digit to letters, just like on the telephone buttons, is given below. Okay, okay. So mapping is like this. So 1 में कुछ नहीं है, 2 is okay. ABC is from 2, 3 is from D, E, F, G, H, I and all that. Okay, okay, great, great. So I mean, okay. So integer string mapping तो हमें define करना पड़ेगा है ना. So 1, 2 is for ABC, 3 is for D, E, F and all that. So let's see, and then what all we have. So output क्या है? So digit is 2, 3. So 2, 3 में what? Oh, letter combination चाहिए. Okay, so word नहीं बनानी है हमें. Okay, letter combination चाहिए. So 2, 3 में क्या होगा मेरे पास? I have A, B, C and D, E, F. So A will be having A, D, A, E and A, F. B will be B, D, B and B, F. And C will be C, D, C, E and C, F, right? So basically 3 cross 3 का combination बन जाएगा यहाँ पे ना 9. So this will be having the output. And also यहाँ पर एक edge condition दिख रहा है मुझे limit. So एक और constant भी मुझे दिख रहा है. So no string condition भी देखना पड़ेगा हमें. So this is one edge condition here, and then also we have 2. Okay, so single character का भी देखना पड़ेगा. Single character condition भी देखना पड़ेगा हमें. Cool. This is 2 edge conditions. Again, so digit length for 4 तक ही हो सकता है. ठीक है, fair enough. Anyway, hardly matter. So digit I in the range of 2 to 9. ये तो हमें पता ही है. चलो, cool है, simple है guys. ज़्यादा tricky नहीं है. In fact, ये तो simple ही question लग रहा है मुझे. Any logical understanding? Anybody? Okay, so SQNite is saying dictionary. Yeah, dictionary. Yes, obviously we can use a dictionary. And in fact, यहाँ पे तो anyway यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ define करना पड़ेगा mapping जैसा है ना. जैसे हमने आपको याद होगा Roman integer Roman में हमने एक define कर दिया था simple सा कि for each of the letters what is the integer representation. Likewise integer का what is the Roman representation. Like more of a mapping kind of a thing, right? Similarly यहाँ पे भी हम dictionary define कर सकते हैं. Like 2 का हमारा ABC हो जाएगा, 3 का DEF हो जाएगा, 4 का GHI हो जाएगा type है ना. So we can obviously define that mapping for sure. That can be done. Anything else? Anybody is looking out? और उसके बाद and dictionary बनाने के बाद क्या कर सकते हैं? Just give me a few pointers, guys. Give me some English sentences. What are you thinking? How do you think it can be solved? Just give me a few English sentences. Then we'll try to frame up the code. And let's try to think about the problem first. Give me some suggestions. What do you think you want to solve this as? और इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, ultimately what I am thinking, if nobody is responding, so what I am thinking right now is here we have the digits, right? So we have the digits. So somehow we have to map the digits with the integers for sure, right? And then we have to also find out what is the length of my digit. So based on that length only, we have to identify how many combinations would be made out, right? So that is one thing which I'm thinking of. So making basically my individual content.
let's see how we can solve this. Cool. So अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. फ्लो में हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले एक मैपिंग तो बनानी पड़ेगी. मैपिंग ऑफ what to say, so number with string है ना. so एक तो ये मैपिंग तो बनानी पड़ेगी हमें. so that's what Q is also saying about. so we'll be having mapping of number with the string. अब मैपिंग के बाद क्या कर सकते हैं? जो मैपिंग के बाद देखो हमें मेजरली जो काम जो मुझे दिख रहा है इसमें, I'm thinking in perspective of the individual digits, right? So digits में we have to find out what is the length of my digits, and for each of my characters, so basically for each of my characters I have to also define कि उसकी mapping क्या है, respect like get the values kind of a thing, है ना. So वो कर सकते हैं. चलो ठीक है, चलो एक सॉल्व करते हैं इसको. Let's try to define something. स्टार्टिंग सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक काइंड ऑफ एक मैपिंग बना देते हैं. सो मैपिंग क्या होगी हमारी यहाँ पे? मैपिंग एक डिक्शनरी होगी. डिक्शनरी को DIC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड देन वी हैव ओके, सो simply write the map here. So mapping. So mapping would be what? So mapping में मेरे पास यहाँ पे क्या है? String head 2 which will be ABC, right? And likewise we have another 3. So that is what? So that is ABC DEF, right? And then we have 4, that is ABCDF GHI, right? And then we have 5 ABCD DFJ JHI JKL. Then मेरे पास क्या है? 6. Then मेरे पास क्या है? 7. Then okay, so then क्या है? 8. And then I have 9. Cool. So 6 में क्या है? MNO. This is PQRS. Okay, this is TUV, and this is WXYZ, है ना. so यही है हमारे पास मैपिंग. ठीक है, ये सिंपल मैपिंग है. ये हमने क्रिएट कर ली मैपिंग. एक सिंपल से मैपिंग है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं करा हमने. अब क्या कर सकते हैं यार इसमें? ओके, आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसमें हम किस तरीके से कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं. ओके, सो मेरे पास यहाँ पर क्या है? फॉर ईच ऑफ माई कैरेक्टर्स बेसिकली मेरे को मैपिंग करनी है ना. सिंपल है, चलो ठीक है. एंड देन अगेन मेरे को मैपिंग से लेटर से मैपिंग निकालनी पड़ेगी. कैसे करें इसको? ओके, सो मेरे ख्याल से इस केस में ओके, सो फॉर लेटर in my digits, so this is definitely be my individual words here. So I'll be having so मेरे को letters में mapping करनी पड़ेगी. so mapping का individual digits का मेरे को mapping के individual digits का character चाहिए होगा ना. so basically I want है ना. so I just can take individual letters. so so I can just define my string here as mapping of my letter, and then okay, so I need to do it not like this. so I need it in terms of my some I can do it. I can maybe create another helper function kind of a thing here to call that up.
How can I do that? Okay, chalo. So if I can just simply, let's do one thing. Let's not complicate this much. Yeah, so we can find out my individual indexes here first. So for my index value, so for my index values, if I talk about, okay, so if I can just create my individual functions, so if I just create a recursive function here separate, maybe I can just create yeah, so I'm trying to solve by recursion only, so Prashant, so just maybe create a recursive function here. Okay, so we can just define my index in this case, and index, and then look at for my what, so I can just define my path here, and then we can do what, so we can find if my length of my path, basically in this case, is equal to my length of my digit. So if this is true, then I'm going to result, so basically which is basically my result in this case, and no, this again will get stuck somewhere. Okay, so we can still do that. So we have result dot. I'm a little confused in this. Okay, so let's try this approach. I'm still skeptical whether this will actually help us to solve this. So we have the path here, and then we can do a result dot append of my this thing, right? And then we can actually, yeah, I mean, we can obviously define this result here. So that's gonna be my actual list which I want. And then we can just keep on appending in the path value here, and then this is gonna return. And if okay, so now for my indexes, so I'm just gonna implement this logic actually. So for my I in range of my index and my length of digit, right? So this is my length of my digit, what I want. So length of my digits basically. So it will be for, and then for each of my indexes I want a dictionary element, right? So for j in my mapping of, for j in mapping of my digit, so digits, digits, digits of I, right? So for j in mapping of this, so what I'm gonna do, so I have my values here, and then what can I do in this case? We can define a path plus j in this case. No, I don't think this will give me a proper. No, this approach is wrong actually. Okay, so एक काम करते हैं, इसको एक बार के लिए पार्क करते हैं, and let's try to create in some other way. So हमने एक रिजल्ट में एक हमारी हेल्प बना रखा है हमने. So in this case हम क्या पास करते हैं, एक हम डेफिनेशन बनाते हैं, रिकर्सिव का ही बनाते हैं, एंड देन इस केस में हम इंडेक्स और लेंथ पास नहीं करते हैं. इस केस में हम क्या पास करें? ओके, सो हमने इसको वैसे भी इसको डिजिट्स और सेल्फ के थ्रू रन करना पड़ेगा, तो इसके पास एक डिफरेंट फंक्शन होगा यहाँ पे. हमने यहाँ पे बनाते हैं let's make it as self for sure, which is my inbuilt function, and then I'll be having my results, and then I think this is fine, results. I can also pass the digit here. एक बार try करते हैं इसमें. So we can have what, so if my length of my नहीं यार,
नहीं ठीक है, एक काम करता हूँ, लेटर्स निकाल दो, इसको भी पाक करता हूँ अभी। आई कैन जस्ट फाइंड आउट माई लेटर्स डायरेक्टली। सो लेटर्स जो होगा मेरे पास इंडिविजुअली, दैट विल बी माई मैपिंग ऑफ। मैपिंग में मेरे पास आएगा इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। मेरे पास, मेरे को कॉम्बिनेशन भी तो देनी पड़ेगी ना इसमें। सो आई कैन ओके यार, आई एम एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज विद दिस लॉजिक। ओके सो कैसे सॉल्व करूँ यार इसको? गैस आई एम लिटिल स्टक, इसको रिकर्सिव से मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम लिटिल स्टक इन दिस। ओके कैसे करें यार इसको? अगर मैं स्टिल फर्स्ट अप्रोच से ही देखता हूँ अगर, सो मैं या मैं एक्चुअली बेस केस में जो आपकी लास्ट डिजिट का जो वैल्यू बोल रहे हो ना प्रशांत, आई एम ट्राइंग टू लुक अप एट दैट ओनली, बट अगर आप कोर लॉजिक में देखो, आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? कॉम्बिनेशन पे मुझे अगेन उस पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेना पड़ेगा। मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं मतलब ऐसे डिजिट्स तो निकाल लूंगा एंड देन आई विल हैव द वैल्यूज आल्सो, बट उसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मैं वही क्रॉस प्रोडक्ट सोच रहा हूँ एक्चुअली। सो मैं अगर मैं इसी सेम फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दूं, मैं अगर एक्चुअली मैं आई थिंक ये वाला अप्रोच में सही ले रहा था। एक बार रुको, मैं सोचता हूँ इस पर। आई थिंक अगर मैं जो मैं इसमें सोच रहा हूँ ना, आई थिंक मैं इसमें सही सोच रहा हूँ। मैं अगर सपोज मैं अगर सेम रिकर्सिव पाथ बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें ये तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर ये सेम ऊपर ही मैं यहाँ पे वापस से इसी फंक्शन को कॉल कर दूँ, रिकर्सिव को ही कॉल करता हूँ वापस से, रिकर्सिव, and then I'm gonna just give I plus 1 and then it's gonna be my path plus j in this case, right? I can do that. हाँ एग्जैक्टली मतलब मैं एक्चुअली वही अभी देखो वही सोच रहा हूँ, इसके अंदर ही इसको सॉल्व कर देता हूँ वापस से ना, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो देगा मेरा, है ना? आई थिंक ये तरीका भी सही है। चलो एक बार ट्राई मारते हैं, इस पर। तो अभी मेरे पास ये हो गया। ओके सो अब मेरे पास रिजल्ट ऑलरेडी एक एम्प्टी लिस्ट है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे डीएफ को कॉल, जो मेरा यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज है, तो मैं करता हूँ रिकर्सिव को कॉल कर देता हूँ। ट्राई मारता हूँ, आई एम डाउटफुल तो हूँ मैं थोड़ा सा। रिकर्सिव को मैं कॉल करता हूँ, इंडेक्स क्या चाहिए मेरे को, 0 डाल देता हूँ यहाँ पे, एंड पाथ यहाँ पे एम्प्टी डाल देता हूँ, है ना? सो एंड देन मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ रिकर्सिव को और रिजल्ट को रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न रिजल्ट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना? सो आई एम जस्ट कॉलिंग द सेम फंक्शन हियर एक्चुअली। लुक्स लाइक दिस शुड सॉल्व। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को डाउट है थोड़ा वैसे इसमें। एक बार ट्राई करता हूँ। मुझे एक एज कंडीशन भी दिख रही है, 0 वाली एज कंडीशन मैंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं करी है। एक चलो एनीवे एक बार टेस्ट करते हैं ये लॉजिक सही आ रहा है कि नहीं। ओके सो लॉजिक में डिजिट क्या है? क्या रोल नंबर होगा इसमें? अच्छा डिजिट्स है ना यार, सॉरी। ओके राइट, ओके परफेक्ट। चलो ये, हाँ ये मतलब आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी सा पार्ट था। तो व्हाट हैव डन इज सेम पाथ को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड यहाँ पे रिकर्सिव को वापस 0 इंडेक्स पे मैंने कॉल कर दिया है एंड रिटर्न रिजल्ट। ओके हाँ ठीक है, आई थिंक फाइन, आई वाज थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। ये भूल जाओ, ठीक है, ये अननेसेसरी में कॉम्प्लिकेट कर रहा था। सिंपल है, कुछ नहीं करा है मैंने। यहाँ पे सेम रिकर्सिव प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के, अरे यार, है ना? और इसी को इसके अंदर ही सॉल्व कर दिया। मतलब वापस से जब मैं आई प्लस जे करूंगा तो उसी के अंदर वापस से उसी को दोबारा सॉल्व करेगा उसी लूप में, है ना? तो ये ठीक है, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक दिस, या ओके ये, हाँ मुझे लग रहा था कि एम्प्टी वाला हमने ऐड नहीं करा है। एम्प्टी वाला, ओके एम्प्टी वाला एक कंडीशन है जो वी हैव टू थिंक इन दिस केस। अरे यार ये नीचे मुझे इसका एम्प्टी में मुझे क्या चाहिए? रिकर्सिव 0 एम्प्टी कैसे डालूं? अच्छा सिंपल है ना, यहीं पर अगर मैं एक और कंडीशन डाल दूं, अगर
अगर इफ डिजिट्स में मेरे पास कोई रिटर्न ही नहीं करता है, सपोज मेरा यहाँ पे आफ्टर डूइंग ऑल दिस मेरा डिजिट्स में कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे सपोज यहीं पे रिटर्न करने से अलावा अगर मैं कर दूँ इफ डिजिट्स में कुछ है नहीं, if not digits, then in this case I'll be doing what? So I can just say return what? Return and just no return need in this case I can say result define कर दूंगा, result define कर देता हूँ एक empty list, okay? ये empty list हो जाएगी and नहीं यार मेरे को रिटर्न ही कर देता ना, रिटर्न फिर इसको वापस लूप में डालना पड़ेगा, तो रिटर्न एक empty list रिटर्न कर देता हूँ, है ना, अगर ये डिजिट्स नहीं है तो। हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली विकास सही बोला आपने, इफ डिजिट्स इज इक्वल टू नल रिटर्न, हाँ एग्जैक्टली। सो इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं कर सकते आप, आपको एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड क्या है, देखो एम्प्टी लिस्ट है ना यहाँ पे, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रिटर्न कर सकते, जबकि मेरे में आउटपुट में ये स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, ये गलत है। तो एग्जैक्ट आई थिंक ये लॉजिक अब सही हो जाना चाहिए। हाँ करेक्ट, सिंपल है यार, चलो ठीक है, यही एक पॉइंट था यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक डाला। कूल, अच्छा लॉजिक है, आई लाइक इट। कूल, ग्रेट, चलो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। सिंपल था ये भी, आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया होगा सबको। एनीबडी हैज एनी डाउट लेट मी नो। समझाऊं एक बार? ओके ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट अगेन। देखो इसमें मेजर जो इशू है ना स्क्यूनाइट प्रॉब्लम इज दैट कि हम देखो सिंपल मैपिंग से हम ये एबीसी तो निकाल लेंगे, मतलब वी कैन गेट एबीसी इजीली, वो तो सिंपल मैपिंग का मैं यहीं पे कर रहा हूँ, है ना। यहाँ तक मुझे कोई ये लॉजिक तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अब इन्हीं 3 कैरेक्टर्स में के अंदर भी घुसना पड़ेगा मुझे, है ना। अब इसके अंदर घुस के मुझे कॉम्बिनेशन निकालनी पड़ेगी, तो मैंने क्या करा, ये इसी लूप के अंदर वापस से इसको सॉल्व करेगा, इस पूरे लॉजिक को इस लूप के अंदर वापस से सॉल्व करेगा, मतलब उसके क्रॉस प्रोडक्ट को निकालेगा जो हमें, जहां पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, जहां मतलब बेसिकली हमें इन तीनों के कॉम्बिनेशन को निकालना ना। सो अभी ए का क्या बनेगा, फॉर i+1 करूंगा तो ए के बाद बी को काउंट करेगा, फिर सी को काउंट करेगा, और उसके बाद इन सारे डी एफ के कॉम्बिनेशन को बनाएगा। सो ए का कॉम्बिनेशन विद डी एफ, देन बी का कॉम्बिनेशन विद डी एफ, देन सी का कॉम्बिनेशन विद डी एफ, लाइक दैट, है ना। वो जितने भी ith करेक्टर होंगे वो सारे jth करेक्टर के साथ मैच करेंगे हर बार, हर एक लूप में, एंड देन उन सबको वो क्या करता चला जाएगा, रिजल्ट में अपेंड करता चला जाएगा। यू गॉट इट? ये एक सिंपल सा ही लॉजिक है, मतलब है तो बहुत सिंपल सा ही फंक्शन, बट थोड़ा सा मतलब एक पाथ में एक्स्ट्रा है। यहाँ पे एक चीज जो थोड़ी ट्रिकी है वो है कि उसके क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आप, है ना। उसका बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनाओगे वो एक ट्रिकी पार्ट है। अब इसमें 2 को इसके एबीसी से मैप करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वो तो हम कर लेंगे, बट अल्टीमेटली इसके कैरेक्टर्स को इन सारे कैरेक्टर से मैच कराना है, वो एक ट्रिकी पार्ट है ना। वो हमने इसमें ऐड करा हुआ है बस वही एक लॉजिक है, ठीक है। और यहाँ पर तो एक सिंपल एक फंडा लगा दिया कि वो जब डिजिट नहीं होगा तो वो एम्प्टी कर देगा, बस ये तो सिंपल है, ठीक है। चलो वापस से प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व दिस अनदर प्रॉब्लम। ओके आई थिंक ये करा हमने ना, हाँ चलो 4 सम है। ओके आई थिंक 3 सम वाला हमने करा था, है ना। हाँ 3 सम क्लोजेस्ट एंड 3 सम वाला हमने करा था, ये 4 है, क्या है ट्रिक ये देखते हैं, चलो माय गॉड। ओके ठीक है, इसमें अगेन इनपुट्स आउटपुट्स constraints and then I have the flow, है ना। ओके विकास सिंह 4 सम करते हैं, लेट्स एक्सटेंड द लॉजिक ऑफ 3 सम ओनली। अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ यार, मुझे पता नहीं है, अगर वैसा होगा तो एक्सटेंड कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन एन अरे नम्स ऑफ n इंटीजर्स, गिवन एन अरे नम्स ऑफ n इंटीजर्स, ओके सो नम्स ऑफ n इंटीजर्स, रिटर्न एन अरे ऑफ ऑल द यूनिक क्वाड्रुप्लेट्स। अच्छा आई रिमेंबर, हमने ट्रिपलेट्स रिटर्न करे हुए थे ना 3 सम में। एक बार वो क्वेश्चन निकाल लूँ, 1 मिनट देना मुझे ज़रा ना, एक बार मुझे वो याद नहीं है वो क्वेश्चन क्या है,
एक बार मैं देख लेता हूँ उसमें, आई थिंक उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है उसमें शायद ट्रिपलेट्स था, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। वी आर डिफाइनिंग द डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स, यस एग्जैक्टली। सो इसमें ट्रिपलेट्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कूल, समझ गया मैं। सो अभी अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिक क्वाड्रुप्लेट्स रिटर्न करना है। हाँ ठीक है, फेयर इनफ। इनफैक्ट विल डू दैट। सो आई थिंक आपका वो क्वेश्चन जो 3 सम वाला था वो तो लॉजिक सबको क्लियर होगा, है ना। सो सेम सेम ही पॉइंटर से करते हैं, लेफ्ट राइट पॉइंटर करके, एंड देन वी गोना एक्सटेंड इट फॉर 4 सम। ठीक है, लेट्स विल सॉल्व इट इन दैट लॉजिक ओनली, कूल। एंड देन इसका कांस्टेंट पढ़ लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ए बी सी डी का चाहिए सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू ए, बी सी डी एंड लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये 0 और एन के बीच में होना चाहिए, सिंपल, वैसे तो लॉजिकली है। एंड ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट, ये भी ठीक है। और उसके बाद क्या, नम्स ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू टारगेट, ये भी एक ध्यान रखना है हमें। सो हमने टारगेट की इक्वल करना है इसको, है ना। सो यू मे रिटर्न द ऑर्डर रिजल्ट इन एनी ऑर्डर, इसमें कोई इशू नहीं है। सो अब हमारे पास क्या है, 1 0 -1 0 -2 2, तो टारगेट इज 0, है ना। ओके, सो एक सेकेंड तो समझाने की कोशिश। रिटर्न एन अरे ऑफ ऑल यूनिक क्वाड्रुप्लेट्स ए बी सी डी। ओके, सो ए बी सी डी का क्वाड्रुप्लेट चाहिए जिसका सम जो है टारगेट की इक्वल होना चाहिए। सो -2 -1 1 2, सो 0 की इक्वल है, करेक्ट, फेयर इनफ। एंड ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, मैं रिपीट नहीं कर सकता इसको, ओके। एंड ये तो ठीक है। सो इन दिस केस ग्रेट, ओके, नहीं यार फिर तो रिपीट हो रहा है ना 0 0। ओके, आई हैव 2 zeros हियर, दिस इज इंटरेस्टिंग गाइस, लुक एट दिस। So I can have, so basically number of characters का repetition allowed है if the characters are repeated basically. 0 दो बार है तो that is fine. Makes sense to me. So I have it like this. ठीक है, fair enough. हाँ, ABCD are indexes हैं, correct सही बोला आपने। और इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, 0 0 जो यहाँ पे 2 बार zeros हैं, वो they have used it also. So basically वो भी एक constant का पार्ट बनेगा हमारा। Look for I mean what to say, number count also, है ना। look for number count, ये एक लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहेगा हमें ये करना है, ठीक है। चलो अगेन लॉजिक जो हमने डिफाइन करा था वो 3 सम वाले केस में आई थिंक वो सेम था ना, जिसमें हमने लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को डिफाइन करे थे, एंड देन वी वर इंक्रीजिंग इट बाय 1 कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। सो एंड देन डेफिनेटली आपका वो टारगेट का चेक भी आएगा वहाँ पे। सो विल डू दैट, कूल। आई थिंक फ्लो में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव, आई थिंक वी सॉल्व 2 क्वेश्चंस इन दैट एरिया ना। एक तो क्लोजेस्ट वाला भी था जिसमें हम टारगेट से मैच करा था, एक सिंपल ट्रिपलेट्स को भी रिटर्न कर रहे थे हम, तो 2 क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ हमने। तो आई थिंक ये उस लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आई थिंक उसी को हम एक्सटेंड कर देंगे नाउ। एक और मतलब इफ एल्स कंडीशन आ जाएगा बेसिकली इसमें, और क्या होगा, सिंपल एक और एल्स कंडीशन आ जाएगा। सेम लॉजिक पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो नाउ इन दिस केस फ्लो, अब फ्लो ही बनाऊंगा इसमें, बिकॉज आई थिंक सबको ये तो ये क्लियर होगा, बिकॉज वी ऑलरेडी सॉल्व 2 क्वेश्चंस इन दिस। अभी सबसे पहले हमारा कैसे कैसे करेंगे इसमें हम, एज ऑलवेज हम नम्स को सॉर्ट कर लेते हैं। नम्स डॉट सॉर्ट, सबसे पहले जो बेसिक था हमारा, फ्लो में नो प्रॉब्लम है ना, ठीक है, कूल, ठीक है, यूनाइट। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो नम्स डॉट सॉर्ट बेसिक हमारा सबसे पहले था, सॉर्ट हमने करा था। अब इसके बाद हमने क्या क्या करना है, एक हमारा एक तो सिंपल सा बात है, एक हमें लिस्ट में रिटर्न करना है। तो क्वाड्र, जैसे ट्रिपलेट्स का एक लिस्ट बनाया था, हम इसमें सिमिलरली क्वाड्रुप्लेट्स का एक लिस्ट बना लेते हैं। सिंपल है, मतलब एक सिंपल क्वाड्रुप्लेट्स का लिस्ट बना लेते हैं, एंड देन फिर फ्लो स्टार्ट करते हैं। सो एक हम एक लिस्ट बना लेते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रुप्लेट्स का हम एक लिस्ट बना देते हैं। तो लिस्ट एक इनिशिएट कर दिया। अब हमारे पास जो अब अरे के ऊपर हमें लूपिंग करनी है ना। सो बेसिकली जो हमारा कैरेक्टर्स है, क्विकली अब क्योंकि अब हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इसमें पॉइंट है। अब जो हम रेंजिंग करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ माय कैरेक्टर्स ऑफ 0, सो मेरा जो 0th कैरेक्टर है, यहां पे क्या होगा गाइस, क्विकली आई वांट यू टू आंसर दिस। यहां पर क्या होगा, यहां पे टिल व्हाट वैल्यू यू गोना रेंज दिस, क्विकली गाइस, आई थिंक ये आप बता सकते हो मुझे।
हमने 3 सम में भी करा था इसको, टिल व्हाट कैरेक्टर, -2th कैरेक्टर, रिमेंबर राइट, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे ये। एंड देन फॉर क्वाड्रप्लेट्स में आप कहां तक करोगे, क्या इंडेक्सिंग होनी चाहिए क्विकली? एग्जैक्टली ये n-3 तक जाएगा ऑब्वियसली, वेरी गुड गाइस, यस। अब n क्या है, डेफिनेटली मोर लाइक मेरा बेसिकली लेंथ ऑफ माय अरे है, तो n आई थिंक वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। सो लेंथ ऑफ माय इंडिविजुअल अरे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो लेंथ ऑफ माय अरे क्या नंबर्स है, तो लेंथ ऑफ माय नम्स -3 तक जाएगा ये, है ना, ये हमारा रेंजिंग का लॉजिक है। वेरी वेरी गुड गाइस, ग्रेट। तो अब यहाँ पे मैं इस पे रेंजिंग करूंगा -3 तक। अब इसके ऊपर मेरा क्या क्या चेक्स है, आपको याद होगा हमने यहाँ पे अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है कि डुप्लीकेट्स भी हैं, है ना। सो अब हमारे पास डुप्लीकेट्स भी हैं, तो डुप्लीकेट्स को भी हमें स्किप करना होगा, है ना। सो डुप्लीकेट्स को भी हमें स्किप करना होगा। सो कैसे करें? ओके, सो डुप्लीकेट्स को हम कैसे स्किप कर सकते हैं? if I is greater than 0, okay, and my nums of I is equal to nums of I -1, ठीक है, सिंपल है। मैंने ये कंडीशन लगा दी, अगर ये डुप्लीकेसी का कंडीशन फॉलो करेगा, सो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब डुप्लीकेट्स को स्किप करना पड़ेगा ना। तो इन दिस केस आई कैन सिंपली से कंटिन्यू, ठीक है भैया, कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद अब हम वापस से आते हैं अपनी अब जो अब प्योर लॉजिक है ना, अब उसमें अब 3 सम के प्रॉब्लम में घुस जाते हैं। अब हमारा सेम लॉजिक सेम हो गया, 4 तक घुस गए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बाद वी कैन जस्ट सिंपली स्किप टू अ 3 सम का प्रॉब्लम, सेम लॉजिक। इस केस में क्या करेंगे, फॉर जे इन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रेंज ऑफ फॉर आई इन जे ऑफ रेंज ऑफ जे इन रेंज ऑफ, क्या करूं मैं, i+1 से कर लेता हूं, i+1 राइट, i+1 एंड देन मेरा यहाँ पे लेंथ ऑफ नम्स -2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक तो यहाँ पे मैंने 4 को इनिशिएट किया हुआ है, और इसके बाद से यहां से मैं टोटल नीचे तक 3 का सॉल्व करूंगा, मतलब सेम लॉजिक जो हमने ऑलरेडी 3 पे सेम किया ना, मैंने यहाँ पे इसको i+1 से स्टार्ट करके 3 का लॉजिक लगा दिया। कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? सो अब यहां पे मैं इस लूप में क्या करूंगा, पूरा 3 के सम पे सॉल्व करूंगा इसको, सेम जो हमने पहले करा हुआ था इस केस में। तो हमारे पास क्या है, इसमें भी डुप्लीकेट्स करना पड़ेगा हमें। तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा, इफ मेरा जे का वैल्यू जे इज नॉट इक्वल टू i+1, so if j is not equal to i+1 and my nums of j is what, is equal to nums of j -1, ठीक है। सेम स्किपिंग का लॉजिक यहाँ पे भी लगा दिया। अब इसमें अगर ये भी सही है भैया तो तुम ओके, तो कंटिन्यू। और अगर इसके बाद अगर ये है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल से बात है, हम यहाँ पे पॉइंटर्स डिफाइन शुरू कर देंगे। के एज ऑलवेज नहीं, लेफ्ट, तो अब जे तुम यूज कर, जे और के तो यूज नहीं कर सकते, तो जे तो यूज कर लिया हमने, तो अब के एल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, के और एल डिफाइन कर लेते हैं। नहीं, लेफ्ट एक काम करते हैं, के नहीं करते हैं, एल और आर कर देते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। लेफ्ट पॉइंटर को एल से डिफाइन करते हैं, राइट पॉइंटर को आर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो एल क्या होगा मेरा, एज ऑलवेज गाइस, जे, ये जे यहाँ पे तो j+1 हो जाएगा, एंड अरे यार, एंड आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या है, n है। सो बेसिकली लेंथ ऑफ माय नम्स -1, सो है ना। सो ये हो जाएगा, आई हो जाएगा मेरा j+l हो जाएगा j+1, एंड राइट पॉइंटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नम्स -1, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको वापस से ब्रेक डाउन कर देंगे, अब इसको 2 सम पे कर देंगे। अब मेरे पास ये पॉइंटर्स आ गए हैं, तो अब इस केस में क्या बोलूंगा, टिल द टाइम माई राइट पॉइंटर, सो टिल द टाइम माई लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन माई राइट पॉइंटर, राइट, while my left pointer is less than my right pointer. So in this case I'll be doing, I'll just taking the current sum. So as always, the current sum जो हम define कर रहे थे, current sum क्या होगा मेरा इस केस में, numbers of I plus numbers of j plus numbers of my left pointer plus numbers of my right pointer, ठीक है, यही चाहिए था ना हमें।
एग्जैक्टली हमने 4 से स्टार्ट किया, 3 पे जंप किया, अब वापस से 2 पर आ गए, है ना। हम इसको एक सिंपल उसी लॉजिक पे बस एक और एक्सटेंड कर दिया हमने ऊपर में, और कुछ नहीं करा है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये हमारा करंट सम आ गया यहाँ पे, आई जे लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर। अब क्या है, अब हमारा कंडीशन है कि इफ माई करंट if my current sum is what, so is less than target, then in this case will be k, नहीं हमारा if current sum is less than target, then हमारा जो left pointer है, left pointer should be increment by 1, right, left pointer should be increment by 1, and in this case we'll have an elif condition where the logic would be if my current sum would be greater than target, in this case I'll be doing my right pointer to be minus than equal to 1. So like I'm just adding, reducing this, and if not, then in the else condition comes where I'll be appending my quadruplets. So quadruplets which I have defined here. So quadruplets dot append, and quadruplets approach my entire list here. So it will be nums of I, nums of k, nums of I and I k नहीं, I j है यहाँ पे, I j है, then my right left pointer, then nums of my I j, then I have the r here. So I n j and then l n r, cool है ना, सिंपल है। हमने क्वाड्रल प्लेस में अपेंड कर दिया, एंड अगेन इस दिस केस में फिर हमने क्या करना पड़ेगा, ओके सो अभी मेरे पास क्वाड्रल प्लेस में तो अपेंड हो गया, अब मेरे को इसमें इस केस में एल्स वाले कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, या सो अभी अगर एल्स के अंदर में जाएगा तो मेरे को k को प्लस इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे क्या बार बार कर रहा हूँ, L जो है मेरा लेफ्ट पॉइंटर को मैं इक्वल टू 1 करूंगा, एंड देन राइट पॉइंटर को मैं माइनस इक्वल टू 1 करूंगा, एंड देन इन दिस केस फाइनल लॉजिक जहां पे मैं 1 पे जज करूंगा, while k is less than 1, so basically my L is less than 1, so in this case, and my left pointer is less than 1, and my nums of so my nums of my L in this case, and this is equal to my nums of what, L minus 1, right? So nums of my L and my nums of my L minus 1 in this case. So if this is true, I'll be doing what, I'll be doing my L plus equal to 1, right? So जब तक ये तब तक वैलिड है जब तक मेरा ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, and in this case I'll be doing another light for the right pointer also, while my right pointer, so in my right pointer is again less than 1, and my nums of my right pointer is equal to my nums of, in this case, right pointer plus 1, right? And in this case I'll be telling what, I'll be just doing right pointer minus equal to 1, cool, ठीक है। एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको सेम लॉजिक को। आई थिंक लॉजिक में किसी को समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम नहीं होगा। I is लेस देन R, L इज लेस देन R, कौन सा पॉइंट बोल रहे हो यार, स्किपिंग के लिए ना, यही तो करा है ना हमने, भाई ये पूरा तभी तक वैलिड है जब तक मेरा L इज लेस देन R होगा, एग्जैक्टली तभी तक ये वैलिड है ये। और यहाँ पे मैं फाइनली क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न माई इंटायर लिस्ट quadruplets. So I'll be returning this quadruplets. एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके सो सबसे पहले मैंने क्या करा, रेंज ऑफ 0 to -3 करेक्ट, ठीक है, एंड इफ i is greater than 0 ये भी सही है, कंटिन्यू, एंड फॉर j इन रेंज जिसमें मैंने i plus 1 कर दिया एंड -2 कर दिया, ठीक है, एंड दिस इज करेक्ट, कंटिन्यू, एंड देन पॉइंटर्स डिफाइन कर दिए, while l is less than r करेक्ट, डिफाइन कर दिया, सम का टारगेट का कंडीशन +1 -1, एंड देन क्वाड्रुप्लेट्स डिफाइन कर दिया, अगेन एल्स में +1 -1 करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो यस लेफ्ट इज ग्रेटर देन, ठीक है, लॉजिक सही लग रहा है यार मुझे, है ना।
line 42. Okay, my bad. Okay, very well pointed, guys. My bad, my bad. ये मैं I think मिस कर लिया मैं. uh, नहीं, एक सेकंड, मैं एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे ना नहीं नहीं यार, देखो हमारा लेफ्ट जो पॉइंटर यार, ये क्यों कर रहा हूँ मैं. एंड मेरा यहाँ पे एल, तो ये कंडीशन रहेगा ना, एल आर ही रहेगा ना. ये क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना. अब ये वाइल हमारा जो लेफ्ट का पॉइंटर है, बेसिकली अगर वो लेस देन हमारा राइट का पॉइंटर है, करेक्ट. एंड देन ऑल्सो इन दिस केस मेरा जो राइट पॉइंटर है इक्वल टू राइट एन प्लस राइट प्लस वन एन प्लस वन, राइट. हाँ ठीक है, थिंक ये लॉजिक अब सही है. एंड देन इस केस में ये सब सही है, माइनस वन है ना. एंड देन यहाँ पे प्लस वन होगा. आई थिंक दिस इज फाइन नाउ. सॉरी, या हाँ करेक्ट. आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गया था. आई एम सॉरी. वेरी वेल पॉइंटेड गाइस. यस. ओके, आई थिंक एक बार अब चेक करते हैं, अब सही लग रहा है. ओके, इनवैलिड सिंटैक्स. इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ से आ गया है? लाइन नंबर 2. अच्छा, सो इस सबको कमेंट कर देता हूँ मैं. एंड देन आई हैव दिस. ओके, आंसर रॉन्ग आया है. ओके, एक बार चेक करते हैं. आउटपुट क्या चाहिए था इसको, -2 1 1 2 आया है. एंड मेरे को एक थर्ड वाला उसको नहीं मिला. थर्ड वाला उसको क्यों नहीं मिला, देखते हैं. लूपिंग में कुछ मिस्टेक करी क्या मैंने. चलो एक बार वापस से इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. तो क्या मिस कर रहा हूँ यार मैं. आई थिंक सॉर्टिंग तो हो गया है. माई लेंथ ऑफ माई नंबर्स, इसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं लग रहा है. कहीं कुछ दिख रहा है क्या गाइस, कहीं कुछ मैं लूपिंग वूपिंग में कुछ मिस्टेक किया क्या. मेरे को तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है. लॉजिक तो नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस वन. दिस इज फाइन, कंटिन्यू होगा यहाँ पे. जे इन रेंज i+1 ही होना चाहिए. हाँ, i+ होना चाहिए. i+1 एंड लेंथ ऑफ नम्स, एंड देन लेंथ ऑफ नम्स -2. हाँ ठीक है, इसमें कोई करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन नाउ आई हैव दिस j इज नॉट इक्वल टू i+1. j is not equal to i+1 and nums my j is equal to nums of j-1. This is also fine, continue, है ना. 42 में ओके, यू आर सेइंग 42 में मैं इक्वल टू नम्स. कौन पे बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो क्या. मैं समझा नहीं. प्लस लेफ्ट पॉइंटर को तो मैंने यहाँ पे +1 ही किया ना 42 में. नम्स l+1. आई डाउट यार, अगर नम्स, अगर मैं यहाँ पे नम्स अगर मैं +1 कर देता हूँ, आई डोंट थिंक that's राइट एक्चुअली. चलो एक बार वापस से यहीं से देखते हैं. मुझे ये आई थिंक ये नम्स +1 नहीं लग रहा है यार, है ना प्रशांत. ये दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, सो आई हैव माई j is not equal to i+1 एंड नम्स ऑफ j is equal to नम्स ऑफ j-1. ये तो सही है. लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर डिफाइन कर दिया मैंने, j+1 एंड माई लेंथ ऑफ नम्स -1. ठीक है. and my while its length is 10, I mean
left pointer is less than r, this is fine. So current sum would be, and left pointer and my right pointer, this is fine. Current sum is less than target, will be left pointer plus 1 and right pointer would be minus 1 if it is greater than target. Absolutely correct. And else में मैं क्या बोलूँगा, nums of I j and my left and the right pointer absolutely correct. Now in this case I'll be doing left plus 1, right minus 1, ये भी बिल्कुल सही है. And now in this case if my till time my left is less than r, right? So while my left pointer is less than r, right? And nums of my left pointer is equal to nums of my left pointer minus 1 ही होगा ना यार. मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? I'm somehow still thinking it should be minus 1 only. Doesn't look like I'm missing anything. ओके चलो, अगर आप बोल रहे एक बार प्लस 1 ट्राई कर लेते हैं. मेरे से होगा ये प्लस 1 में, मेरे को लग रहा है एरर आ जाएगी. प्लस 1 में okay, plus 1 actually still did not solve the problem. Actually it should be minus 1 only. And what should I do यार? थोड़ा ट्रिकी हो गया ये क्वेश्चन. हाँ एग्जैक्टली वो माइनस 1 ही होगा यार. मैं कहीं तो कुछ तो मिस कर रहा हूँ. क्या मिस कर रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. आपको कहीं कुछ दिख रहा है तो मुझे बताओ यार, है ना. कुछ तो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है. बट वो लूप से बाहर आ जा रहा है ना. प्रॉब्लम ये है, अगर उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, अगर उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो उसको रिटर्न तो करना ही चाहिए. तो अगर अच्छा एक बार रन करके देखते हैं किस प्रॉब्लम में एरर आ रही है इसको. सो इनपुट क्या है, 1 2 3 4 5 6 है ना. तो ये 6 में मल्टीपल ऑप्शंस आएगा. ओके चलो डीबग करते हैं. मैं ना एक काम करता हूँ उसमें. ओके एक काम करते हैं, इसको डीबग करते हैं प्रिंट करके. हाँ सही बोला आपने, इसको प्रिंट करके डीबग मारते हैं. चलो अभी मेरे पास क्या है यहाँ पे, अभी आई है और जे है ना. सो वाइल लेंथ इज आर, सो करंट सम. सो मेरे पास यहाँ पे एल की वैल्यू है ये और आर की वैल्यू है ये -1. अब मैं यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ नम आई जे लेंथ एंड आर. यार यार I'm really surprised why exactly this is not working. Logic wise I'm pretty sure this is actually right. So मेरे को लॉजिक वाइज तो कहीं फ्लॉ नहीं लग रहा यार. I mean, and that too it is running in a loop, right? Let me think. क्या करें guys? Okay. बस स्टिल लग रहा है कि क्या हम यहाँ पे टारगेट जो है मेरे पास इंडिविजुअली i+1 में, चलो एक बार ट्राई करते हैं. मेरे पास लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस एंड लेट्स सी द आउटपुट, है ना. और कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास. तो अभी यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. तो मैं काम करता हूँ पहले तो यहाँ पे एक प्रिंट करता हूँ फॉर ईच लूप. प्रिंट माई करंट सम करके देखता हूँ, है ना. एंड यहाँ पे l+1 जाएगा, l+1 जाएगा तो करंट सम इज लेस देन टारगेट. तो हमें ये पता चल जाएगा कौन से लूप में गया है. एंड लेट्स ऑल्सो प्रिंट माई print this L and print this R. Actually, I want to see. So we'll see print L and print R like that, you know.
वो कितने लूप में जा रहा है, आई वांट टू सी दिस. आई थिंक देयर इज सम इशू इन द लूपिंग मे बी. Okay, so we have -1 -1 0 0. Okay, second -1 0 0. So but problem is it'll go on printing, it'll give me the last print. So the problem is that it will not print each and every statements here for now. Okay, let me do one thing. So let me just print this L and then print this R also, if it is still taking the loop or not. No, RL and R here. Let's see. Okay, so we have the. Okay, now this is making sense. So I have my values here as 2, 5, right? Okay, so my first value is here. I think there might be. I think थोड़ा दूसरा अप्रोच लेना पड़ेगा क्या? I think इसमें कुछ issue हो रही है. Let's maybe can we take some other approach? I'm not able to really figure out the problem here. Logic wise मुझे actually में इसमें कोई problem नहीं दिख रही थी. Let's see if -1 k is equal to -1. तो let me just look at this. So अभी मैं इसको हटाता हूँ. Okay, और मे बी यहाँ से इसको हटाऊँ. प्रिंट ये नीचे ये भी नीचे. Guys, कुछ तो बताओ यार. I mean, if you guys are able to crack the logic. This is actually bugging me a butt. देखते हैं. So अभी मैं क्या बोल रहा हूँ. मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है दैट इज j+1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन लेफ्ट पॉइंटर में बोल रहा हूँ -1, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन इन माय लास्ट कैरेक्टर, सो समहाउ my left is less than my right, so this has to be true all the time, right? And nums of my left in this case should be equal to nums of my L-1. I'm still worried about this. Now this is fine, yeah, this is actually fine. And nums of my R plus, so basically right pointer में +1, correct? इसमें भी कोई doubt नहीं है. Now there is no issue in this part, okay? So we have defining the else part here. So in this case going to be L plus is equal to 1 and R minus is equal to 1. This is absolutely correct. इसमें कोई problem नहीं है. And then this is also pretty much good. So simple condition है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा fancy करा नहीं है मैंने. And कहीं ना कहीं पर बहुत simple सी एक mistake हुई है जो हम figure out नहीं कर पा रहे हैं. Let's see that. So सेट डुप्लीकेट्स में आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं. सेट डुप्लीकेट्स, ओके. आई थिंक इन दिस केस थोड़ा सा ना ट्रिकी हो गया ये. हमने सोच लिया थोड़ा इजी है, बट एक्चुअली इसने ना थोड़ा अभी गिव अप करा दिया है मेरा. देखते हैं यार. ये इसमें मैं ना क्वेश्चन से समझना चाह रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. इसमें इसको 3 आउटपुट चाहिए अभी बेसिकली. तो इसी से डिबग करने की कोशिश करते हैं यार, है ना. अगर सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे -2 -1 1 and 2, सो बेसिकली इसने 2 आउटपुट को फिगर आउट करा है. ये थर्ड लूप में नहीं जा रहा है. सो इसने यहाँ पर अगर -2 को फिगर आउट कर लिया ना, तो इसने 0 0 को कंसिडर नहीं किया है दोबारा. सो आई थिंक हाँ, ये
क्या? Okay, so it will be wrong. So it will give 1 0 after removing brackets. But if you look it out, there are 2 zeros involved. Yeah. Line 45 में sir line for set R is greater than L. How does that matter? We're anyway doing makes sense, यार, makes sense. That actually makes sense. अगर मैं R को greater than L करता हूँ, I can actually do that, but still ट्राई करते हैं. आई थिंक आपका एक ही पॉइंट है मुझे जो अभी समझ में नहीं आ रही है. ये ना थर्ड लूप में क्यों नहीं जा रहा है यार? आई एम स्टिल कंफ्यूज विद दैट. व्हाई इट इज नॉट गोइंग इन द थर्ड लूप? इसमें हम क्या कर सकते हैं यार? कंफ्यूज कर दिया इसने मुझे. दूसरा लॉजिक से करूं गाइस? दूसरा लॉजिक से करूं इफ योर गाइस आर ओके. आई थिंक इसमें ना मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया. इसको ना सोच रहा हूँ कलेक्शन वलेक्शन जो हमारा डिफ़ॉल्ट डिक्ट से जो हम यूज़ करते हैं ना, कलेक्शन वलेक्शन से सॉल्व कर सकता हूँ मैं. इस लॉजिक से ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कहाँ फंस रहा है ये. थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है मतलब. इवन टू बी ऑनेस्ट मैं अभी इसको सोच नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से, किस एंगल से इसको बनाऊँ. बट आइडली इसको सॉल्व हो जाना चाहिए था, बिकॉज लॉजिक वाइज तो मेरे को इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है. मतलब आई एम ऑनेस्टली नॉट एबल टू फाइंड एनी फ्लॉ इन द लॉजिक. बट हो सकता है कहीं ना कहीं मिस हो रही होगी कुछ चीज़ें यार. अब कहीं ना कहीं तो पॉइंट है ना. इसको सेकंड लॉजिक से करते हैं एक बार, है ना. ये आई थिंक समहाउ आई एम लिटिल स्टक इन दिस. चलो ठीक है, एक काम करते हैं. हाँ एग्जैक्टली यार, वो ना सॉर्टिंग के बाद इसको पिक नहीं कर रहा है. मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए. मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज लॉजिक वाइज मुझे कहीं भी इसमें फ्लॉ नहीं दिख रही यार. और सिंपल है ना, नम्स डॉट सॉर्ट तो करा मैंने यहाँ पे. और अगर ये बोलता कि इसको वो जीरो कंडीशन की एरर आ रही तो मैं मानता, ठीक है मैंने एक शायद जीरो वाला इंप्लीमेंट नहीं करा, यहाँ पे कर सकता था. सिंपल एक लॉजिक लगा देता कि मतलब अगर लेंथ ऑफ नम्स जो है अगर आपका लेस देन 4 होगा टाइप्स, तो एम्प्टी रिटर्न कर दूंगा, है ना. ये एक लॉजिक आई कैन अंडरस्टैंड कि एक पेंडिंग दिख रहा है मुझे, ये मैं लगा देता. बट apart from this, after sorting why it is not picking -1, I'm really speechless. I'm not able to get that. I mean, I'm actually confused by that. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पार्क करते हैं. Let's keep it like this. इस पे डिबग करूंगा मैं. लाइक I'll in fact कल के क्लास में ना मैं थोड़ा इसमें डिबग करके आपको बताऊंगा कि इसमें I'll try to figure out. I'll try to sit tonight and then I'll see, है ना, कि क्या प्रॉब्लम है. इसमें दूसरे लॉजिक से करते हैं यार. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया इसमें. एक और दूसरे लॉजिक से ट्राई करते हैं. सो अभी इसको मैं नीचे कर देता हूँ कम्प्लीटली, है ना. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट सम अदर लॉजिक. हमारे पास और भी बहुत सारे लॉजिक हैं. अभी सेम लॉजिक से नहीं करते हैं. अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, मेरे पास नंबर से मेरे पास टारगेट है. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं. ओके चलो हम एक काम करते हैं. इसमें एक चलो बाय डिफ़ॉल्ट में काम करते हैं, नंबर्स को डिफाइन कर लेते हैं एक सॉर्टेड पे. सॉर्टेड जो हो जाएगा नंबर्स पे डिफाइन करते हैं. ठीक है, नॉट सॉर्ट को यूज़ नहीं करते हैं इस बार, सॉर्टेड को यूज़ करते हैं. सॉर्टेड जो है मेरा नंबर्स का सॉर्टेड है. ठीक है, एंड देन मेरे पास यहाँ पे एन भी डिफाइन कर लेता हूँ मैं. चलो लेंथ ऑफ माई नम्स. ठीक है, ये मेरे पास दो चीज़ें हैं. अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, अब मैं बेसिकली करना चाह रहा हूँ, मैं सेट ऑफ माई वैल्यूज़ अगर बना लूँ और मैं लिस्ट में से डिफ़ॉल्ट डिक्ट बना दूँ, है ना. वी कैन डू दैट. सो आई कैन जस्ट डू I can create a mapping basically. So mapping of, so I just create just like m of इसमें मैं collections यूज़ कर लूँ. collections का default dict यूज़ कर लेता हूँ. collections default dict, and in this case I'll be passing my I'll be passing my default dict of, we can create a default dict of list. In this case you can just create a default dict of my list. Okay, so we just create a default dict of my list here, and then I'm just creating a set. So the final result will be what? A set of my final. So I don't want any
duplicates, right? Now in this case for for मैं क्या कर सकता हूँ for I थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें. अगर मैं क्या कर सकता हूँ यार, अगर मैं यहाँ पे रेंज की जगह एक्स रेंज यूज़ कर लूँ, है ना. अगर मैं सिंपल रेंज ना यूज़ करूँ, ओके सो ठीक है मैं सिंपल ना यहाँ पे इसमें करता हूँ, क्या करूँ मैं, एक आइटरेटर ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ फॉर आई इन एक्स रेंज ऑफ माई n-1, okay. And in this case I'll be doing for j in x range of my I plus 1, and then in this case I'll be doing n, right. And then we'll be doing my my individual numbers, है ना. So इस पे मैं my mapping of my nums of I, mapping of my nums plus I plus my nums of j, I'll be doing in this case dot append in this case I comma j. ठीक है. इस यहाँ तक लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है? मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं करा है ना. सो सिंपल मैंने यहाँ पे आई थिंक इस यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा. मैंने एक लेजी इवैल्यूएशन स्टार्ट किया है. यार एक्स रेंज कैन बी यूज इन पाइथन 3. आई डोंट सी एन इशू, बट ट्राई करते हैं. मतलब आई डोंट नो वेदर इट विल टेक हियर. हर एक का आईडी भी डिफरेंट है यहाँ पे. आई डोंट नो वेदर इट विल टेक, बट आइडियली एक्स रेंज में तो कोई इशू नहीं चाहिए. पाइथन 3 में यूज तो कर सकते हैं. बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं. एक बार लॉजिक लिखता हूँ. लॉजिक पे पहले लॉजिक बना लेते हैं, फिर देखते हैं रन करके, है ना. सो फॉर अगेन इन दिस केस ये तो हमारा फर्स्ट हो गया ना. अब मेरे पास नंबर्स आ गए. अब मेरे को पेयर्स बनाने होंगे. सो फॉर इन दिस केस अगेन आई विल बी डूइंग फॉर आई इन सेम चीज एक्स रेंज ऑफ माई n-1, है ना. एंड देन आई विल बी डूइंग फॉर j in x range of same thing. So in this case I'll be doing I plus 1 and I'll be doing till my nth character, so till my n, you know, and this will be good. Now in this case I'll be doing my what, so my remaining values, right. So remaining would be what? So remaining would be my target minus num of my I माइनस नम ऑफ माई जे, है ना. सो दिस माई रिमेनिंग वैल्यू हेयर. अब इस रिमेनिंग वैल्यू पे ही पूरा ड्रामा है. सो अब इस पे करते हैं. अब फॉर इन दिस केस एक और यहाँ पे एंटर मार देता हूँ. ये रिमेनिंग वैल्यू आ गई, है ना. सो अब रिमेनिंग में क्या होगा? फॉर अगेन हमें पेयर्स निकालनी पड़ेगी ना इसमें. फॉर माई रेस्ट ऑफ माई वैल्यू. सो फॉर माई पेयर in my mapping of my remaining, so in this case I'll be doing if my I is greater than my pair of what's a pair of in this case I'll be doing the 0 1 pair of I is greater than pair of 1, and then I'll be doing so I'll be ending here in this case for the remaining part, remaining dot add here, and then I'll be doing my number my number में मेरे को चाहिए number of my pair of my 0, and then I'll be doing also my number of my pair of 1, right.
एंड देन नंबर ऑफ आई एंड देन नंबर ऑफ जे, है ना? ठीक लग रहा है मुझे तो यार, ये भी ठीक लग रहा है। तो ये जो मेरा पूरा रिमेनिंग फंडा बना, ये यहाँ पे मैंने सब में ऐड कर दिया इस केस में इफ़ कंडीशन के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इसी जो रिमेनिंग है वो तो अभी इसको लिस्ट की तरह रिटर्न कर दूंगा। आई कैन जस्ट रिटर्न दिस, जो रिमेनिंग वैल्यू मेरी लिस्ट की तरह रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न लिस्ट ऑफ रिमेनिंग। ओके, एक बार ट्राई मारता हूँ अगर ये रन करता है लॉजिक। हाँ, ये यार एक्सचेंज का चक्कर है इसमें। ओके, ओके, या ठीक है, बिकॉज एक्स रेंज यार, नहीं यार ऐसा नहीं है पाइथन 3 में। ओके यार, आई थिंक फिर कैसे करें, अभी एक्स रेंज इंपोर्ट नहीं करने देगा मेरे को। इसको एक बार पाइथन 2 के आईडी पे रन करेंगे, पाइथन 2 के आईडी पे। राइट, ये पाइथन 2 के आईडी पे मेरे को रन करने देगा, बट लेकिन मेरे को पाइथन 3 पे अगर इसको सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, आई थिंक इसको एक बार के लिए रहने देते हैं। आई थिंक आई एम रियली स्टक इन दिस। मेरे को और कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। वो तो सिंपल था यार ना अभी, मतलब सिंपल वाला लॉजिक नहीं चल रहा है अपना। और कोई सजेशन दो यार, आई थिंक आई एम आउट ऑफ माई सजेशंस। और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं? uh, एक हेल्पर फंक्शन बना के ट्राई करें क्या? यार ये मुझे तो किसी भी एंगल से मीडियम प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है, ये तो मेरे को हार्ड प्रॉब्लम लग रहा है। पता नहीं वाई दे हैव केप्ट इट एज अ मीडियम प्रॉब्लम, है ना? चलो ठीक है, एनीवे एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पार्क करते हैं अभी। आई थिंक वी आर स्टक, इवन आई एम स्टक। तो इसको एक बार मैं, मुझे ना स्टिल आई एम वेरी स्केप्टिकल कि ये जो ये वाला लॉजिक इसने नहीं चलाया ना, क्योंकि ये लॉजिक हमारा ट्रायल एंड टेस्टेड है, हमने ऑलरेडी इस पे 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। एंड दिस केस लॉजिक वाइज तो मुझे इसमें एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ओके, आप क्या कहना चाह रहे हो विकास? ओके, वी हैव हियर, ओके, आपका कहाँ लॉजिक है यार, समझा नहीं। अच्छा, टारगेट टारगेट इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे। कौन सा बोला आपने, इसमें बोल रहे हो क्या? अच्छा, रिमेनिंग में, अब इसी में लगता है शायद इसी में बोल रहे होगे। ओके यार, एक काम करते हैं, नेक्स्ट इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको थोड़ा पार्क करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? लेट मी थिंक अबाउट दिस। इनफैक्ट आई वांट टू सॉल्व इट विद दिस लॉजिक ओनली, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है ना, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसको एक बार पाइथन 2 वाला पे नहीं घुसते हैं। लेट्स रिमूव दिस अप, आई डोंट वांट दिस टू बी मेस्ड अप। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट विद दिस लॉजिक ओनली, ठीक है? I'll think about it tonight कि exactly इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, and I'll give you the solution. I'll try to give you the solution tomorrow. ठीक है, so let's do one thing. Maybe we can take one more question apart from this. इसको पार करते हैं. Unfortunately, we are not able to solve this. I don't know why they have kept it as a medium problem. This ideally should be a difficult problem यार. It took a lot of time from us, है ना? So but ठीक है, चलो, anyway that's how we learn. कूल है। तो ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाया, फोर सम, विल सी क्या करना है इसमें। ये करें क्या, रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट। चलो ये करते हैं। लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम। 3 सम वाला तो हो गया था यार, चलो कोई बात नहीं, लेट्स डू दिस। nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट, ये क्या है यार? ओके, लिंक लिस्ट का लग रहा है यार ये तो। ओके ओके, लिंक लिस्ट के फंडे पता है सबको, मतलब क्या यूज़ करते हैं इसमें? बेसिकली हम, ये सिंपल होता है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट, हेड, है ना, ये सब चीज़ें हम थोड़ा इसमें देखते हैं। बेसिकली लिंक लिस्ट के अगर आप जब इम्प्लीमेंट करना चाहते हो ना, तो वो नेक्स्ट करके उसको उसका नेक्स्ट आइटरेटर उठाता है ना, तो वही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिंक लिस्ट में। ऐसे तो कुछ है नहीं इसमें। चलो विल सी दैट। इनपुट, आउटपुट, कांस्टेंट।
एक्सप्लेन कर लें, हाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी सेम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एंड लिंक लिस्ट एक्सप्लेन कर लें, क्या एक्सप्लेन करने की बात करूँ मैं, समझा नहीं यार। लिंक लिस्ट की बात करो क्या, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हो? Okay, I mean, if that is what, again, this is actually still not relevant. But again, I would say देखो simple है, लिंक लिस्ट में कुछ नहीं होता, आप सिंपल ये समझो ना, ये मैं एकदम प्लेन इंग्लिश में समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव दीज सर्कुलर बॉक्सेस, दीज ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद एन एरो मार्क। इसमें एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर सपोज मैं दो ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूँ, 1 and 2, राइट? सो 1 इज माई हेड हियर, सेकंड इज माई नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन 2 इज द, अगेन फॉर 2 and 3, 2 इज द हेड, 3 इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, राइट? बिकॉज हर एक नोड का एक प्रीवियस ऑब्जेक्ट होगा और एक सब्सिक्वेंट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट? सो विच इज बेसिकली पार्ट ऑफ दिस। एंड हियर हमारे ओवरऑल सॉल्यूशन का हेड क्या है? 1। सो लिंक लिस्ट का हेड है 1, ओवरऑल लिस्ट का हेड है 1, बट फॉर ईच ऑफ माई सब्सिक्वेंट नोड्स, इसको हम नोड्स बोलते हैं, इसका एक हेड होगा और एक सब्सिक्वेंट नेक्स्ट नोड होगा, है ना? सो एक लिंक लिस्ट में बस कल इतना ही होता है। इसमें जब भी हम इवेल्युएट करते हैं, तो देखो यहाँ पे भी लिख रखा है इसने, नेक्स्ट। जो अभी किसी भी आप नोड के ऑब्जेक्ट को डॉट नेक्स्ट करोगे ना, बेसिकली उसके वो नेक्स्ट नोड को आइडेंटिफाई करेगा। एक सिंपल लिंक लिस्ट में यही, जब भी आप इंप्लीमेंट करते हो पाइथन को, यही एक नई चीज़ है जो हर एक में वैलिड नहीं होती है, बट इसमें नेक्स्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं लिस्ट नोड्स को, ठीक है? और इससे ज़्यादा एक्चुअली कुछ है नहीं इसमें, मतलब समझने के लिए। तो आई थिंक लिंक लिस्ट तो बेसिकली पता होगा ना आपको, लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट यही होता है। एंड पाइथन की इंप्लीमेंटेशन जब हम आपकी बात करते हैं, लिंक लिस्ट को जब हम ढूंढते हैं, तो वो डॉट नेक्स्ट करके इसका एक नया, मतलब एक लौता इसमें एक इंडिविजुअल एक मॉड्यूल फंक्शनैलिटी है, जिसके वो नेक्स्ट नोड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है? एक यही चीज़ इसमें जानने वाली है, और अलग से ऐसा कुछ है नहीं इसमें। लॉजिक स्टिल सेम ही होगा, मतलब आपको इनफैक्ट अभी इस कोड को भी बनाऊंगा ना, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ आई एम सॉल्विंग दिस। बट अगेन इसमें सिंपल, जब आप कोड भी जब भी नोट्स का लिखते हो ना, तो सिंपल यही लॉजिक होता है इसमें, है ना? चलो, गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स हेड। सिंपल है, ठीक है? अभी हमने यहाँ पर द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट दिया हुआ है इसने, सो रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। कूल है। सपोज मेरा हेड है 1 2 3 4 5, है ना? सो बेसिकली मेरा 1 2 3 4 5 का एक लिस्ट है, एंड n इज 2। सो 2 के बाद मेरा 3 4 5, सो 2 का nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, सो nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। ओके, सो n इक्वल टू 2 इसने दिया फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। सो हमने यहाँ पे 4 को रिमूव कर दिया, है ना? ठीक है, कूल है। सो हमारा ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, और इसने सेकेंड एलिमेंट को लास्ट, मतलब सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट को रिमूव करना है, सेकेंड नोड मेरे को लास्ट से रिमूव करना है, तो 4 हो गया। इसमें देखो क्या है, पहले सबसे अगर फ्लो समझो, इसको सिंपल फ्लो समझोगे अगर, तो हमें क्या करना है, पहले इस नोड को आइडेंटिफाई करना है, n जो है, n के थ्रू हमने इस नोड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट? एंड देन इसको यहाँ से रिमूव करके इसको 3 को और 5 को ज्वाइन करना पड़ेगा। बस सिंपल, समझ में आ रहा है क्या करना है मुझे? हमने इस n2 से जो मेरा n, जो भी nth कैरेक्टर होगा, I have to find which node is this, and then after finding this node I have to just remove it and connect the previous and the next nodes. That's it. That's what we have to do here. Right? नायर, क्वेश्चन समझ में आया? Okay, Vikas saying logic is used 2 pointers. One pointer will advance by n minus 1 nodes. Okay, and then slow will start from the head, right? And fast will start from the nth node. Correct. बिल्कुल सही बोला। Yes sir, few concepts which is used in question. ठीक है, now both fast and slow will move at same pace. When fast is at end, our slow will be around nth node from the last. Cool, ठीक है, लॉजिक तो आपको मैं समझा। ठीक है, चलो। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अगर मैं 2 पॉइंटर अप्रोच लेता हूँ, फास्ट एंड स्लो फॉर एग्जांपल। सो अगर मैं स्लो एंड फास्ट को बनाता हूँ, ठीक है? सो अगर मैं हर एक पॉइंटर्स के स्टेप को नेक्स्ट करते बढ़ता चला जाऊँ, अगर मेरा n नंबर ऑफ नोड्स है ना? सो फॉर माई रेंज ऑफ माई nth नोड, करेक्ट? तो मेरे पास इस केस में क्या करता चलूँगा मैं, ओके, हाँ ठीक है, आई थिंक ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है आपका। एक्चुअली मैं, दिस इज वेरी सिंपल अप्रोच, लेट्स डू दैट। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो।
So I think logic wise भी question clear है, skew night nair है ना. So let's try to quickly solve this up, है ना. Logically कैसे solve करेंगे हम इसको यहाँ पे. तो मेरे पास क्या है. So I'll just define again slow and fast को define कर देता हूँ, है ना. So same ही है. So head दोनों को ही head दे देता हूँ. So I'm defining 2 pointers, slow and head, है ना. अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि n पॉइंटर्स जो है मतलब n स्टेप के थ्रू बढ़ूंगा, n स्टेप लूप, है ना. तो इस केस में क्या बोलना चाह रहा हूँ, फॉर आई इन माई रेंज ऑफ माई 0 टिल माई n, सो दिस इज माई n, है ना, जहाँ तक मेरे को जाना है. एंड दिस गोना बी वेयर आई विल बी सेइंग जो मेरा नेक्स्ट लूप होगा. सो इन दिस केस आई विल बी सेइंग if my the pointer here, so if my this pointer is if my pointer is basically none, so if my fast dot if my fast dot next is equal to none, I'll be saying, now if this is the case, now I'll be deleting the node, right? So in this case, if this is true, my if I is equal to n minus 1, in this case I'll be saying head is equal to head dot next. ठीक है. And then here in this case I'll be saying in this case return head. ठीक है, सिंपल है. एंड देन मैं क्या बोलूँगा, इसके लिए भी बोलूँगा, फर्स्ट लूप के लिए भी फास्ट डॉट नेक्स्ट, दिस फास्ट डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू, नहीं सॉरी मोमेंट, सो फास्ट विल बी इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट. कूल, ठीक है, सिंपल है. मैंने बस nth करेक्टर तक फाइंड किया एंड देन अगर वो n-1 का लॉजिक ऑक्यूपाई करता है तो हम जस्ट सेइंग हेड को हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, एल्स फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट कर दूंगा मैं. ठीक है, सिंपल है. अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा फास्ट जो है एंड तक लूप पे नहीं करता है ना. अब इन दिस केस अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब इसको स्लो वाले पॉइंटर से भी तो मिलाना पड़ेगा ना. सो नाउ वी विल बी मूविंग माई स्लो एंड द फास्ट बोथ पॉइंटर. सो इन दिस केस आई विल बी सेइंग while my fast dot next is not none, right? So fast dot next is none. In this case I'll be saying slow will become my slow dot next and fast will become my fast dot next, है ना. Simple है. Slow will become my slow dot next and my fast will become my fast dot next. Cool, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब मेरे पास ये तो हो गया. अब इस बार मैं क्या बोलूंगा, मैं अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डीलिंग करना है. अब मेरे पास ये तो कंडीशन मिल गई ना. अब मेरे को इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, 3 को 5 से जोड़ना भी तो पड़ेगा. तो इसको जोड़ोगे कैसे, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, करेक्ट. अब 3 को और 5 से ज्वाइन करना, यहाँ पे तो मैंने निकाल दिया इस नोड को, बट 3 डॉट नेक्स्ट, राइट, ये भी तो करना पड़ेगा. सो इन दिस केस ये तो while का कंडीशन है. So while is fine, and now I'm saying that if my I'll be saying slow dot next is equal to slow dot next, then in this case I'll be doing what, no, slow dot text नहीं यहाँ पे ये तो नीचे जाएगा यार. स्लो डॉट टेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, स्लो डॉट नेक्स्ट, पहले कंडीशन तो लगाऊँ. स्लो डॉट नेक्स्ट, इफ स्लो डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, सो आई विल बी सेइंग इन दिस केस स्लो डॉट नेक्स्ट विल बिकम स्लो डॉट नेक्स्ट, राइट. सो नाउ इफ दिस इज फाइन, नाउ इन दिस केस आई विल बी रिटर्निंग माई हेड. Cool. yes. Previous of slow का मैंने नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया, next dot next, and then I think this is fine.
सेम लॉजिक है, आप ही का लॉजिक यूज़ किया मैंने विकास, बट आई थिंक लॉजिक आपका परफेक्टली फाइन है. वी कैन यूज दिस. इसमें मुझे कोई इशू नहीं लग रही. एक बार मैं जस्ट क्विकली कंपेयर कर लेता हूँ. सो वी हैव फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to n, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास. एंड देन मेरे को बोल रहा हूँ फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट परफेक्टली फाइन. इन दिस केस आई विल बी सेइंग इफ i इज इक्वल टू n-1, देन हेड जो है मेरा हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा. एंड रिटर्न हेड, दिस इज फाइन. फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट. एंड देन मैं फास्ट के बाद क्या बोल रहा हूँ, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट. दिस इज फाइन. स्लो, आई थिंक दिस इज लुक्स गुड टू मी. एक बार रन कर लेते हैं इसको क्विकली. ओके, क्या रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स. ओके, नन, राइट. ठीक है, सिंपल है. हाँ एग्जैक्टली. सो एग्जैक्टली मैं वैसे ही हर एक नोड पे n-1 के थ्रू. यार इसमें तो सिंपल है ना. अगर मैं i इक्वल टू n-1 नहीं करूंगा तो अब देखो सिंपली, अगर मैं यहाँ पे अगर n-2 भी करता हूँ तो क्या होगा, मेरे इस थर्ड नोड पे चला जाएगा. बट मुझे क्या करना है, n-1 पे करना है, बिकॉज आई वॉन्ट द सेकेंड लास्ट नोड फ्रॉम द नोड. इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे को n इक्वल टू 2 डिफाइन करते हो तो अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, अगर आप i इक्वल टू n-1 करते हो यहाँ पे. अब लॉजिक को समझो. देखो यहाँ पे क्या है, फॉर i इज इन रेंज ऑफ 0 to n. मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड n क्या है, मेरा nth कैरेक्टर है. और n-1 क्या करना, मैं इस मतलब बेसिकली यहाँ पे वैल्यू, अगर मैं यहाँ इसको मैंने इसको अगर रिमूव करना है, अगर मैं n-1 नहीं करूंगा तो मेरे को यहाँ तक देखना पड़ेगा ना. अगर मैं इसी को रिमूव कर दूंगा, अगर मैं यहाँ तक अगर मैं इसको चेक करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. हमें क्या करना है, i इक्वल टू n-1 तक ही तो देखना है. मतलब इसके जस्ट एक प्रीवियस वाले कैरेक्टर तक देखना है. अगर यहाँ तक हमारा लूपिंग को फाइंड आउट करता है, देन मैं हेड को बोलूंगा हेड डॉट नेक्स्ट. लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज हियर इन दिस केस n इज व्हाट माय टारगेट इज, जहां पे मुझे को nth कैरेक्टर तक जहां पे मूव करना है, तो उसके एक स्टेप पहले तक मुझे चेक करना होगा. समझ में आया विकास? आई थिंक इसमें एज कंडीशन तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो एक बार सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं. हाँ ठीक है, सिंपल है लॉजिक. पर आई थिंक देयर विल बी मेनी पीपल आई गेस जिसको लिंक लिस्ट का शायद कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा समहाउ. तो अगेन गाइस, डू नॉट गेट कंफ्यूज. मे बी व्हाट आई कैन डू इज, सो देयर आर टू थिंग्स व्हिच आई कैन थिंक ऑफ. So एक तो डायनामिक प्रोग्रामिंग है फॉर श्योर, बिकॉज पॉइंटर्स का हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड द सेकंड इज माय लिंक लिस्ट, है ना. सो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन. सो आई बिलीव देयर विल बी फ्यू पीपल जिसको शायद ये कोड बहुत डिटेल में नहीं समझ में आई होगी, है ना. सो एक बार हम वो भी चेक कर लेंगे. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्सप्लेन ऑल्सो इन डिटेल. आई हैव टू प्लान द कंटेंट फॉर दैट, सो आई विल डू दैट, है ना. सो अगर जैसे इस टाइप के कोई क्वेश्चंस हैं, आई थिंक ब्रॉडली टू टॉपिक्स है जो मुझे समझ में आ रही है. एक तो आपका पॉइंटर्स का टॉपिक, डायनामिक प्रोग्रामिंग, एंड सेकंड इज लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, विच इज थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड टॉपिक्स, है ना. तो आई कैन टेक दिस सेपरेटली एज अ डिफरेंट प्ले लिस्ट, है ना. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. कूल, चलो ठीक है, फाइन गाइस. सो आई थिंक let's stop for the day. I think for the question of the foursome, right, I'll try to work it tonight or maybe early tomorrow, and I'll come back to you. So हम कल के क्लास में उसको वापस से डिस्कस करते हैं. I'll try to solve it. I'll try to just see की प्रॉब्लम क्या है ना. I'll try to figure out some solution for that, and I'll discuss that. Cool, great guys. So I think डीएसए का क्रैश कर सकते हैं यार, बट आई कैन इस मंथ के स्केड्यूल थोड़े प्लान्ड है. एंड सो व्हाट आई कैन डू इज मे बी आई कैन प्लान इट अप फॉर द नेक्स्ट मंथ, है ना. आई विल डू दैट. बट यार डीएसए प्लान में तो है यार. आई मीन आई हैव नॉट स्टार्टेड इट. आई हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट फॉर इट, सो इट विल टेक सम टाइम. आई विल प्रिपेयर द कंटेंट दिस मंथ ओनली, सो दैट वी कैन नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स वी कैन डू अ सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर दैट. आई विल डू दैट. ठीक है, चलो कूल. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. लेट्स मीट टुमारो सेम टाइम 9 PM. हम ये फोरसम वाला प्रॉब्लम करेंगे, बट बिफोर दैट, बट अगेन विल बी गोइंग विद अदर क्वेश्चंस आल्सो, बट विल डेफिनेटली डिस्कस द फोरसम प्रॉब्लम. आप लोग भी ट्राई करना एक बार. लेट्स सी कैसे करते हैं इसको. चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच. बाय बाय, गुड नाइट.